Greetings, Evans. So I'm in Tirunamalai on this beautiful hill, Arunachala, and still continuing my journey with the mystics. Who are these mystics? The mystics are the ones who have already completed their journey. The purpose of their journey, human life, is fulfilled. Maybe not entirely, but major part of their journey is done. Why I say not entirely is because until their rest of their prarabdha unwinds, they continue to live with their physical bodies on this planet until it's all exhausted. But till then, we all get to see a glimpse of these great beings. Why is so much importance given to all these mystics? Because people ask me, what is the need to be seeing so many mistakes? And today morning, in fact, I was in Tirunamalai. आज सुबह मैं तिरुवनामलई में था, यहाँ था नहीं हूँ. I am in तिरुवनामलई. अभी अरुणाचलेश्वरा के स्थान पे हूँ. अरुणाचला, what do they call the hill? पर्वत तो नहीं है, जो भी है. अरुणाचला पे हूँ, ये वन में बैठा हूँ. सुबह से यहीं सब घूम रहा हूँ. और सुबह एक महात्मा के दर्शन हुए यहाँ पे. तो वो महात्मा यहाँ झाड़ू मारते हैं गिरिवलम पथ पे. he sweeps, literally he sweeps the Girivalam path here in Tiruvannamalai. Some very excited devotees. There is a feeling, if you shout only you will get to see the Lord. ऐसा लगता है कि चिल्लाने से ही भगवान सुनते हैं. ये वो लोग हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं. Devotion is another thing. Foolishness is another. When we do not know what we are doing, जब पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, तो ये सब आडंबर जमा लेके इकट्ठा करके बैठते हैं. आडंबर, these are all. We do not know. What are rituals for? Rituals are all meant. All these kind of formalities are okay, done for certain. It is to excite the भाव जागृत करने के लिए होता है. पागलपना है ये सब, यूं चिल्लाना. क्योंकि वन में काफ़ी सारे लोग ध्यान कर रहे हैं, सब एक शांति में बैठे हैं. People are sitting here in different corners. I met two ladies also sitting here in this while coming here. They are all sitting in peace. This is a place of silence and peace. But when we do not know what we are up to, then all this shouting and craving. This is why places like Himalayas have become a tourist place, very unfortunately. Because people come there in the name of worship and do all kind of nonsense. Swamiji was telling me, Rameshji, he was talking to us on and off about how the Himalayas has almost turned into a commercial place. It's not like what it was before. And that I can see not only in Himalayas, I can see it everywhere here. First of all, there is no respect for the mystics. ये जो महात्माएं हैं, साधु संत हैं, आदर नहीं रहा. We treat them like beggars. They are not beggars. One very beautiful thing I came to know, which I learned from the team in Himalayas, was the difference between bhik and bhiksha. भीख आप ऐसे ही देते हैं किसी पे करुणा जागृत होके,
भिक्षा देते हैं, भीख देते हैं, सॉरी, भीख में घमंड होता है. There is pride and ego in giving alms to somebody. Normally we see whenever we go into very deep places, spiritual places, there will be a lot of mystics and sadhus and saints, and they are not bhikaris, they are भिक्षुक्स. अंतर है. साधु संत जो होते हैं भिखारी नहीं होते हैं, भिक्षुक होते हैं. अंतर है भिक्षा और भीख में. ये मैंने सीखा ये टीम के साथ जो मैं घुमा भी हिमालय में, क्योंकि ये टीम को संस्कार सिखाया गया है, शायद उनके खून में ही है. इट इज इन देयर ब्लड. द बेसिक एटीट्यूड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, it is there in human blood, in these people who are living in these places and serving the great sages. Because they have that attitude of respect and devotion, they are able to deliver that. Because they have that attitude, that culture within them strong, they are able to know the difference between giving alms, I don't know how to put it in English. They are not beggars. They are bhikshuk. Bhikshuks means what you give is bhiksha. When you give bhiksha, you are sharing a part. आप शेयर कर रहे हो. आप दान, भीख नहीं दे रहे हो उनको. दान भी नहीं दे रहे हो. दान करना भी घमंड होता है. भीख देह समान होता है. दान देने से ऐसे लगता है कि मैं बड़ा हूं, इनके पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास बहुत कुछ है, तो मैं इनको दे रहा हूं. जिसके पास कुछ नहीं है, वंचित है, तो वो एक घमंड होता है, उसमें अभिमान होता है. लेकिन भिक्षा देने यानी कि आपके पास जो है, जो नहीं है, जितना भी है आप शेयर करते हो उनके साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े आदर से आप शेयर करते हो इन लोगों के साथ, क्योंकि आपको लगता है कि ये सही मायने में हकदार है. ये लोग जो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, क्योंकि सब त्याग दिया उन्होंने, सब कुछ त्याग दिया. किसके लिए? सिर्फ केवल एक परमात्मा के लिए. बस उनका वही चिंतन है, वही मनन, वही श्रवण है, वही दिन रात उनकी चेतना और उनकी चेष्टा वही है कि उसको पाले. और उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाके सब त्याग कर देते हैं. और जब त्याग करते हैं उनके पास कुछ नहीं होता उस समय. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके शरीर को नहीं लगेगा चीज़ें. उनको शरीर को ठंड लग सकती है, बीमारी हो सकती है, भूख भी लगती है, प्यास लगती है, सब होती है. लेकिन वो इतने पागल है उस लक्ष्य को पाने में कि उनका प्रथम जो प्रायोरिटी है वो है. और उसके लिए वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, सैक्रिफाइस कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं. ये है वो महात्मा सारे जो बैठे हैं. इसलिए मैं जितने भी लोगों के साथ था, उनको ऐसा लगता था कि इनको उच्च से उच्च चीज़ मिलना चाहिए. हालांकि उनको कोई परवाह नहीं है, आप उच्च का दो, किसी भी प्रकार का चीज़ दो उनको या ना दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो जो है उसमें जो मिलता है उनको, उसी में तृप्त रहते हैं. whatever they get, whatever alms they get, whatever comes to their hands, they are happy in that. That is the life they have made. They have prepared a life in this format to remain content with what they have, because they know comfort leads to lot of problems. अधोगति होती है कंफर्ट्स में. कंफर्ट्स यानी कि सुविधा. जितनी सुविधा हो उतना दुविधा, जितनी सुविधा उतनी दुविधा. That is the reason they all leave all their comforts of the worldly life and travel towards the hills. यहाँ तिरुवन्नामलाई में भी जितने साधु संत बैठे हैं, ऑफ कोर्स सभी तरह के लोग हैं इसमें ये नहीं कह रहा कि सारे जो है सभी वो उसको पाने में लगे हुए हैं.
नहीं, कुछ अपने बस गुजारा भी कर रहे हैं। ऐसे भी यहाँ पे उतना ही नहीं, हिमालय में भी है, ये तो सब तरफ है। रमेश जी ने मेरे को एक ही सिखाया मुझे, जब भी महात्माओं को मिलो, सारे प्रकार के हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सेंट्स एंड साधुस एंड मिस्टिक्स आते हैं, सभी पूजनीय हैं, ऑल आर वर्थ adoration and salutation, all are worth respect, because they are all part of that divinity, even if they are not on the right track. अगर उनकी भावना भी सही नहीं है, वो जो भी करे, जिस भी मकसद से करे, तो भी वो त्यागी है एक तरीके से। और वो हिमालय की चोटी पे पहुंचे हैं, या ऐसे कंदराओं में पहुंचे हैं, या ऐसे पहाड़ पे पहुंचे हैं, या ऐसे गुफाओं में पहुंचे हैं। They have reached such kind of caves and mountains and hills and isolated places because of a certain kind of renunciation. एक त्याग है उनमें अंदर, उनके प्रारब्ध में है वो। तो वो मुझे कहते थे कि उसको नमन करो, उस त्याग को नमन करो, ये मत देखो कि कौन क्या कैसे है। डोंट लुक एट हु इज व्हाट एंड ऑल दैट। सो सभी पूजनीय, बट ही सेड इतना जानो, किसको मानना है किसको जानना है, बस इतना जान गए तो हो गया। माने किसको और जाने किसको। It's a deep thing. Anyways, I was telling why mystics are given so much of reverence here in India. Today I posted Vanakkam, Vanakkam, he says always. Vanakkam Shiva, he says. Vanakkam Shiva, Vanakkam Shiva. He says to every soul that comes in front of him, he'll say Vanakkam Shiva, Vanakkam Shiva. So he is actually greeting the Shiva that he sees in every human being there. दैट्स हिज दृष्टि। उनकी दृष्टि वो है कि जो भी आगे आए वो शिव दिखते हैं उनको, सिद्ध है यहाँ पे। वो घूमते रहते हैं, और कैसे घूमते हैं? झाड़ू लेके, झाड़ू पोछा करते हैं तिरुवണ്ണामलई में। महात्मा है। अवधूत स्तुति में है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन है, एक महात्मा है, घूमते रहते हैं। मौन स्वामी जी के पास ही उनका रहना ज़्यादा होता है। कभी घूमते रहते, कभी उनको कोई गाड़ी पे बिठा के लेके जाते हैं, चलते रहता है, वो सब तरफ जाते हैं, किसी को कुछ मना नहीं करते। तो आज मैं बाहर निकल रहा था शेषाद्री स्वामीगढ़ के उनके जीव समाधि से, तो एकदम सामने ही मिले, और मैं इनको हर बार देखता था दूर से। किसी ने मुझे बताया भी था कि वो ऐसे ऐसे है, महात्मा है, लेकिन मैं उनके पास जा नहीं सका, या ऐसे मौका नहीं है। लेकिन आज एकदम सामने आए और वो झाड़ू मार रहे थे, तो सबको नमः शिवाय कर रहे थे। वणक्कम 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 नमः शिवाय। तो तब जाके मैंने पैर छुआ उनका, और वैसे ही उनको पैर छूना अच्छा नहीं लगता। ही डजंट लाइक एनीबडी टचिंग हिज फीट। जैसे मैं पैर छूने गया और छुआ भी, माय हैंड टच्ड हिज फीट, ही पुल्ड बैक एंड ही वाज सेइंग नो, वणक्कम वणक्कम, शेकिंग हिज हेड, नो नो नो, एंड पुल्ड बैक। आई सेड ओके। फिर पॉकेट से विभूति निकाल के दे दिया, ऐसे हाथ में डाल दिया। दैट्स, वो ऐसे ब्लेस करते हैं। अब ये सब पागलपन लगता है व्हेन पीपल स्पेशली ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड लुक एट व्हाट आई एम शेयरिंग, इट लुक्स लाइक क्रेजी। व्हाट इज दिस गाय अप टू? You know, all torn clothes, some people sitting here and there meditating and doing what, I don't know. No interest in life. What are they doing? Grown beards, दाढ़ी वाड़ी छोड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, मैले कपड़े हैं, on bare requirement, bare minimum requirements. And this guy is going and meeting them, posting their photographs. What for? Some others ask me, why run behind humans? पिछले बार, लास्ट टाइम आई वाज सिटिंग हियर इन और उषा जी के पास, जो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ बैठता हूँ, क्योंकि वो सारे उसके अंदर फोटो महात्माओं का ही है, सिद्ध महात्मा, अवधूतों का ही। और मैंने एक वीडियो बनाई भी था उनके बारे में। वो पूरा होटल ही सिद्ध स्थान है, वहाँ एक अवधूत भी रहते थे बहुत पहले, नीचे गुफा, एक गड्ढा गाड़ के उसमें रहते थे काफ़ी साल। उसमें वो कोई तो साधना करते थे, खाते पीते नहीं थे। और वहीं से एक देवी की भी मूर्ति मिली,
और वो सिद्ध महात्मा काफ़ी साल थे, लेकिन होटल बनने से पहले जब वो गए उनको पूछने के लिए या कुछ जानने के लिए, तो वहाँ नहीं थे। वहाँ सिर्फ ऐश बन गया, उनका राख मिला वहाँ पे, यानी कि वो समाधि ले ली उन्होंने। दैट इज़ द हाईएस्ट समाधि, टू dissolve your body. And look at it, how commonly it happens. It's under this hotel, Aro Usha, where I sit in front of Sheshadri Swamigal. See how commonly things happen and how uncommon it is, and who gives importance to it. Oh, somebody there turned into ash. That whole place is vibrating. So I sit there sometimes. And one day I saw somebody fight. मैंने देखा कोई आके झगड़ रहे थे उषा जी के साथ। ये बोले, ये क्या तुम सब लोगों की फोटो लगा के बैठे हो यहाँ पे, इतने सारे गुरु गुरु कौन है ये सब, तुम बोलते हो सिद्ध महात्मा है, ऑल दिस सिद्ध महात्मास एंड ऑल दैट, आई सी ऑल दिस फोटोज हियर, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाई आर यू गाइज वर्शिपिंग ह्यूमन बीइंग्स, गॉड इज टू बी वर्शिप्ड, भगवान की पूजा की जाती है, इंसानों की नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो इंसानों की फोटो लगा के। शी वॉज क्वाइट, जस्ट क्वाइट, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, यह नहीं, शी वॉज ओके ओके। एंड ही वेंट ऑन 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 ऑन। फाइनली जब उनको लगा कि उन्होंने अपनी जो भी थी अंदर से बाहर निकाल दी, he quietly walked away. Quietly, I don't know, fumingly, he went away. बट उसको लगा बहुत कुछ हासिल किया उसने उतना बोल के। अपनी जो गंदगी थी कहीं तो थोप के, उसको लगा बहुत अच्छा बात किया उसने। ये क्योंकि वो जानते नहीं है, सजग नहीं है, दे डोंट नो, दे डोंट नो, especially people of a different faith. Hinduism people know, definitely they know, but people of other religions might not know. So it is confusing to them, especially to Westerners. Why, what is all this nonsense about? Yes, it's not definitely needed. It's not that everybody has to look into these areas. But while we live our life on this earth, it is a reverence. एक मर्यादा है। हम अगर मनुष्य हैं तो एक मर्यादा है उन लोगों के लिए जिन्होंने एक स्थान हासिल किए, जो कोई नहीं कर सकता। ये इतना सरल नहीं है, ये पथ इतना सरल नहीं है। बोलने को कितना अच्छा लगता है कि कोई सिद्ध महात्मा बैठे थे नीचे गड्ढे में, इतने साल तपस्या करते, जो भी करते, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, और फिर उसको जब होटल बांधना था, जब समय आया तो उनको, महात्मा को, शायद बाहर जाने के लिए या फिर पता लगाने के लिए कि ये है कौन, क्या कर रहे, तब जब गए तो राख बन गए थे। राख बनना यानी अपने आप को जलाना नहीं, आत्महत्या नहीं है। ये एक उच्च की समाधि की स्थिति है जो सबको हासिल नहीं है। उनका तप उनको उस लेवल तक ले गया कि their tapas, their penance took them to that state of such a purity that they had so much command over their bodies, on the 5 elements, पंचतत्व पे पूरा उनको नियंत्रण, कि जब चाहे, जब मर्जी वो उसको त्याग दें, whenever they want they can dissolve their bodies, because they have mastery over the 5 elements: earth, fire, water, wind and sky. Body is made out of this panchakoshas, panchadhatus. Now when they know the science of this, they can dissolve it back into nature, and that is what that ash is all about. Body is turning into ash is nothing common in Tirunamalai. If you go up this hill, I'm sitting here in one part of the hill, but if you go right on top, there is a Virupakshi cave. In the Virupakshi cave, विरूपाक्षी गुफा में आप अभी भी एक ढेर पाएंगे विभूति का, राख का. You'll still find a heap of ashes. It is there since
800 years. 800 साल पुराना वो गुफा, और गुफा के अंदर जो राख है वो भी 800 साल पुराना। वो राख एक सिद्ध महापुरुष का था जिनका नाम था विरूपाक्षी। कर्नाटक के एक बहुत बड़े सिद्ध थे। उन्होंने शरीर त्यागा, इतने सालों बाद, सेंचुरीज बाद भी अभी भी वो रखा हो, अभी भी वो वाइब्रेशन, अभी भी वो पावर है। और ये जो हम मजाक उड़ाते हैं उनके बारे में कि हु आर दीज, ज़रूर उस समय पे अगर विरूपाक्षी जी को किसी ने देखा होगा, वो लंगोट में बैठे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, या नग्न बैठे होंगे, विदाउट क्लोथ्स और विद अ लॉइन क्लॉथ ही मस्ट हैव बीन सिटिंग देयर। ज़रूर ही मस्ट हैव नॉट सैट विद द शर्ट एंड पैंट एंड gloves and sweatshirts and t-shirts and you know what all. Why? Because he had renounced everything. Only when somebody renounces the world, they can achieve God, what we are calling as God. And we talking about worshipping God, we cannot respect the people who have worshipped and reached the godly state. They have become one with God. They are as good as God. That is the state of Aham Brahmasmi. वो बन चुके हैं, वो पहुंच चुके हैं उस स्तर पे, तो क्या वो पूजनीय नहीं है? Who is the creator and who is the destroyer? Tell me, who is the sustainer? बोलने को बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिवा. Brahma creates, Vishnu sustains, Shiva destroys. This is why it is God. This is the तीन तत्व, major elements of that God state. Who's God? These three forms. Out of godliness comes these three forms, because God turns into the creator and creates everything in this cosmos. God turns into that Vishnu Tattva and he maintains and sustains. All this is the Vishnu Tattva, you can see, even including this. If I am surviving, it is the Vishnu Tattva in me. The force of Vishnu is keeping us alive, everything alive, preserving everything, sustaining everything. Who gave birth? The Brahma creates everything. Who kills and destroys? प्रलय हो गया, सब निकल गया यहाँ से, या मौत हो गई, शरीर निकल गया, आत्मा निकल गई शरीर से, शरीर छूट गया, ये विलीन हो गया वापस. डिस्ट्रॉयर, इट इज डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गया, अस्तित्व खत्म. जब ये तीन प्रिंसिपल आता है तो उसको भगवान बोलते हैं. नाउ यू टेल मी, जो सिद्ध महात्मा अपनी इच्छा से पैदा हो सकते हैं, वो कहीं भी विलीन है. एक अवधूत को अगर, या एक सिद्ध महापुरुष को आना है, एक मकसद लेके है, एक अवतार को भी आना है, तो उनको पता है किस तरीके से, कब, कौन सी योनि में प्रवेश करना है. They are in command of the creatorship. They create on their will. आप और हम कर सकते हैं? Any of us can do that? We cannot do that. Godly states can do that. These great enlightened beings know when and how to be born. So they actually create their life on their will. They sustain their life for as long as they want. जितना चाहिए उतना वो सस्टेन करते हैं, पोषण करते हैं उस शरीर का. जितना खाना है खाते हैं, या फिर वो शरीर को स्थिति तक ले जाते हैं कि वो बिना खाने के भी रह सकते हैं, खान पान के, लेकिन सस्टेन करते हैं. एक कारण है, एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेके वो सस्टेन करते हैं. दैट्स द ब्रह्म तत्व, दैट्स द विष्णु तत्व. अपनी मर्जी से जितना चाहिए उसको सस्टेन करते हैं, और सस्टेन आप और हमसे भी बेहतर करते हैं. They sustain their bodies better than you and me. You and me need food and drink. Those who have mastered it don't need anything. They can sustain without these gross things. So who is superior? You and me or they? They are Vishnu Tattva. And this what we are talking, ash. Virupakshi ji's cave turned into ash. There in the hotel, Horusha's hotel, they are also down. A Mahatma turned into ash when they want.
At will they can destroy their body. Shiva, Mahesh. Aren't they godly like? Can you and me do that? This is why we have reverence for the great mystics. This is why we have reverence for all these great enlightened siddhas and avdhutas. They are masters of their own life. They create, they sustain, they destroy as per their wish, but not for their own needs. That is a catch. Even the birth, the sustenance, living, and the destruction, death, all is dedicated to the cosmos, nothing for themselves. So they take the body, they live with the body, and they go with the body, all in the process of helping humanity in some or the other way. It is absolutely selfless. इसलिए वो पूजनीय है, आदरणीय है. This is why they deserve all the best of respects and devotion. Those who understand the secret and approach them with humility and this reverence. ये समझ से अगर किसी ने भी उनके पास, कोई भी गए उनके पास, बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है. क्यों? आप उनके विसिनिटी में आ गए, आप उनके सानिध्य में आ गए, उनकी चेतना उस स्तर पे है जो आप सोच नहीं सकते. करुणावश, क्या पता आप पे करुणा आ जाए. मैं तो कहता हूं आप पे रहम आ जाए, आप पर और मुझ पे, उनको क्या पता एक संकल्प कुछ कर जाए. क्या पता उनके सानिध्य ही कुछ कर जाए. पता नहीं चलता अपने को, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो स्तर पे हैं. दे हैव रीच्ड दैट स्टेट एंड दे ऑपरेट फ्रॉम दैट स्टेट. एंड व्हेन कैन वी अप्रोच देम? व्हेन वी नो दिस, व्हाट इज दिस. ये क्लैरिटी हो तो हमारा अप्रोच पूरे विनम्रता के साथ रहेगा, भाव और भक्ति के साथ रहेगा. Our approach will be with very pure intentions, very pure emotions, with devotion and with respect and humility. Because we know what it, कुछ भी नहीं है उनके पास, कुछ कौड़ी के भी नहीं उनके पास. क्या औकात है? कुछ भी औकात नहीं उनके सामने. That's the right word. Nothing we are in front of them. When we know we are nothing, then only we can have devotion, surrender, humility, even love. Love for them, because that is what you are also striving to become. That state is something which everybody is striving to become, and the highest goal of human life, उच्च की जो उद्देश्य है जीवन का, मनुष्य जीवन का, यही है. सब यही प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं. जो अज्ञान है उनको पता नहीं है, ठीक है, अज्ञानतावश उनको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी इस मार्ग पे चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी दौड़ में लगे हुए हैं. जो इस दौड़ में जब लगे हुए हैं और ऐसे लोग दिख जाएं जो पहुंच गए उस स्तर पे, कैसा लगेगा? एक अलग ही भाव होगा. मैं ये नहीं कहता कि महात्माओं के पीछे भागने से आपको कुछ मिलेगा. मैं नहीं जानता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. आई एम नॉट इन द कैलकुलेशंस. कुछ खींचता है उनकी तरफ तो दौड़े चले जाता हूँ उनके पास. कुछ तो खींचता है, वही तत्व होगा जो मैं ढूंढ रहा हूँ. मस्ट बी द सेम थिंग दैट आई एम सर्चिंग, which pulls me and attracts me towards them and takes me to them again and again, here and there, everywhere. और मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी इस पथ पे चले हैं सत्य के मार्ग में, और इस उद्देश्य के मार्ग में जहाँ पे आप और मेरा उद्देश्य एक ही है, परम तत्व का. जो जिज्ञासु है इस पथ पे, whoever is curious, the curious seekers
of this path of self-realization to attain freedom. What is freedom? Freedom is nothing but what these people have already attained. They are all liberated. They are free. Nothing can bond them. That is freedom. Nothing can bond them. Not even death can bond them. Not even birth can bond them to their bodies. Not even death can liberate them, and bond them on any other cycles of life, future cycles of life. They are free even from that. If they want, they can choose not to be there. This is all that we are striving for. So those who are, my purpose is, my agenda, my sole agenda is all this. To share this kind of a journey so that it keeps you awake. It keeps you reminding of those people who have reached this mark. See, in this world, we get enough of examples who are the achievers of worldly success. संसार को प्राप्त करने वाले बहुत लोगों की बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे अपने को, रोल मॉडल्स बहुत मिलेंगे, जिसने संसार को प्राप्त किया, धन को प्राप्त किया, ऐश्वर्य को प्राप्त किया, नाम को प्राप्त किया, स्थान को प्राप्त किया, पदवी को प्राप्त किया. पदवी भी बहुत तरह के होते हैं, इसमें भी होता है, अध्यात्म में भी होता है पदवियां. एक महात्मा ने मुझे बोला हिमालय में, अहंकार तो सब हिमालय में भी होता है, साधु को भी साधु बनने का अहंकार होता है. The ego is everywhere. It doesn't spare you. Himalayas doesn't spare the ego or the Maya. Even a renunciate has the pride of renunciation. There's a big catch there. तो ये भी पदवियां, ये भी बोल रहा हूं मैं, ये सब पदवियां भी हैं हासिल करने की. तो ये सारे रोल मॉडल्स हमको बहुत मिल जाएंगे जो इस तरह की पदवियां भी हासिल करते हैं. लेकिन कुछ ही मिलेंगे, चंद मिलेंगे, चंद कहीं तो, जिन्होंने वो स्थिति प्राप्त कर दी, उनका कोई वास्ता ही नहीं, लेना देना ही नहीं है. किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, किसी को कुछ दिखाना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है कि मैं यहाँ पहुंच भी गया. इसलिए ये लोग दिखते नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्दी हो जाता है. कितना देर लगता है अपने को. हमारे अवार्ड्स और ऑनर्स दिखाने को कितना टाइम लगता है अपने को. मैं किस स्तर पे हूं दिखाने को कितना टाइम लगता है दुनिया को. मापदंड बहुत है यहाँ पे, मापने की बहुत सारे चीजें हैं जिस वजह से आप बता सकते हो कि आप इस स्तर पे पहुंचे हैं, या आप इस लेवल के हो, उस लेवल के हो. ये जो कुछ है ना, कुछ चंद लोग मिलेंगे नहीं ऐसे. पारसमणि है ये, नहीं मिलेंगे आसानी से. मिले तो छोड़ना नहीं. इनके दर्शन भी छोड़ना नहीं, चूकना नहीं. तो कौन पता किस चोला में कौन बैठा है, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं, चोला ओढ़ के तो बैठते हैं, पता भी नहीं चलता. स्वयं को पता नहीं होता उनको वो कहाँ है. दूसरों को क्या बताएंगे, क्या पता लगेगा दूसरों को. What will anyone know of their stature? They themselves don't know of their statures that they have reached. That is that state of purity. Very rare, I'm telling you, dear ones. Very rare. Very rare. Like pearls, a handful pearls in this whole population. 8 billion people. Handful. Imagine. I'm telling handful. In 8 billion. So rare. And where do these people sit? Not where you and me sit.
They sit in such kind of location because they don't want attention. They are out from attention. So even if you get their sight, if you fall in their sight, if you come in their vicinity, you don't know what kind of changes of transformation your consciousness can undergo. They are such powerful people. See, the world doesn't know all this, and good it doesn't know. World doesn't know because these people never advertise all these things. They have nothing to do. They are frequency people. They work on frequency. If your intention is on that frequency, it just works, simply works. अगर आपकी चेतना और भाव उस स्तर पे है, ये ऑटोमेटिक काम करेगा. आपको कुछ क्लासेस लेने की जरूरत नहीं इसमें. इसलिए वो क्लासेस भी देते नहीं, ना लेते हैं. उनको पता है. उनको पता है कि कैसा पहुंचना है किसी तक. They have all kind of vibrational works, frequency works. उनको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम नहीं लगता. बट अफसोस ये है कि हमारी जो अज्ञान दुनिया है, दिस इग्नोरेंट वर्ल्ड, वी नीड फेसबुक, Instagram and YouTube to make an attempt to shed it. This is what I'm trying to do. Bring clarity, and I need to use these mediums to convey this real truth, raw truths I'm telling you. This is not घुमा फिरा के कुछ नहीं, सीधी बात. कोई भी घुमा फिरा की बात नहीं. क्योंकि हिमालय में एक महात्मा ने बताया मुझे, साधु बनने का अहंकार तो साधु को भी होता है. साधु को भी साधु का बनने का एक अहंकार होता है. और उन्होंने ये भी कहा, किसी को लंगोट पहनने का भी अहंकार होता है. सी एट व्हाट लेवल. दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेट, दिस इज नॉट, ये कोई जजमेंट्स वर्जमेंट की बात नहीं है. दिस इज क्लैरिटी. समबडी इज गिविंग क्लैरिटी. क्योंकि हम बहुत सारे अज्ञानता में बैठे हैं, पता ही नहीं है कि ये जो ईगो नाम का चीज़ है इतना सूक्ष्म स्तर पे काम करता है, और कैसे कैसे काम करता है पता ही नहीं चलता. अगर सजग नहीं है तो, जागरूक नहीं है, इफ यू आर नॉट अवेयर, द ईगो कैन क्रीप इनटू इवन अ साधु, even a great mystic. Achievements might be there. There might be a lot of, because on this path there is achievement. As we progress, there is always achievements. And in the Himalayas I saw, not everybody is at one level. हिमालय में जो मैंने देखा, हमको एक ही लगता था कि सारे बैठे हैं साधे एकदम. नहीं, बहुत सारे ट्रांजिशन में हैं, बहुत सारे तप कर रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए. Many are not yet in that state. और कुछ कुछ ऐसे भी इंसिडेंट सुने मैंने, और ऐसे देखा भी कुछ मैंने अपने आंखों से भी, उस लेवल पे हिमालय में भी, जो सराहनीय नहीं है, जो ठीक नहीं लगता बताने के लिए भी. लेकिन पता चल जाता है कि माया हर तरफ फैली हुई है. वहां भी सूक्ष्म होते जाता है माया. यहाँ बहुत गहरा है, दुनिया में बहुत गहरा है. द वर्ल्ड इट इज टू डीप. माया, illusion, delusions. That is why people move towards the jungles, towards the, because they want to cut off all the distractions. बट यहाँ से तो बॉडीज हम लेके जाते हैं. वी टेक द बॉडीज एंड गो. मन तो अपने साथ ही है. द वासनास, द टेंडेंसीज, ऑल दिस आर इन द माइंड बॉडी. तो उसको साफ करने के लिए वो ऐसे जगह चुनते हैं और वहाँ बैठ के तप करते हैं. जो भी तप, साधना, भजन, संकीर्तन, जो भी उनका तरीका है, विचार, आत्मविचार, आत्मचिंतन, जप, तप, जो भी है, वॉट एवर इज देयर मीडियम, मे बी चैंटिंग, इट मे बी rituals, it may be havan, it might be meditation, it might be self inquiry, all different types. Yoga. What are they trying to do? They are trying to only clean the चित्त. तपस क्यों करते हैं? चित्त शुद्धि के लिए. ये मैंने सीखा वहां. सारे जो भी प्रयास कर रहे हैं चित्त शुद्धि की,
प्रयास कर रहे हैं। तो करते करते 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, आयु बीत गई। 5 years, 10 years, 15 years they have spent there, sometimes even whole life they have spent there, and कोई पक भी गए, कोई पक गए, मतलब साधना सफल हुई, चित्त पूरा निर्मल, निश्चल, विशाल, शुद्ध हुआ। उस स्थिति में वो बन गए परमात्मा के साथ एक अहम ब्रह्मास्मि का स्थिति में। लेकिन सारे नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ फर्क इतना ही है कि कुछ कंदराओं में कर रहे हैं प्रयास, कुछ दुनिया में कर रहे हैं। मैं आपको सरल भाषा में बोल रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज आई एम टेलिंग। You did not be a yogi and sit in the Himalayas to be doing your tapas. You can be in the world also and do it. ज़्यादा अंतर नहीं देखा मैंने वहाँ और यहाँ। I didn't see much difference. In fact, some cases I found better yogis here or better sadhaks who are in the sansar, who are in the world, than the ones who are in the Kandarao or in the deep isolation. I saw that. What does this mean? Circumstances does not change you. Your mind, how you work on your mind, how you discard your mind is all that is about. Chitta Shuddhi, your mind has to be purified. It's all about mind purification. Whether you do it here in your home, on a water tank, on a playground, or on a battlefield, or in your toilet, or above in the terrace, or in one corner of your room, or in a desert, or in a boat, or in the forest, or in the cave, or on the tree, or whatever, doesn't matter. These are all instruments, these are all methods which individuals choose accordingly. उनके टेंडेंसी के हिसाब से उनका एक एक वो लोग चुनते हैं माध्यम है। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तरीके हैं, विधियां सारे चुनते हैं उनको जैसे ठीक लगता है। तो हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते। ओ वो गया तो मैं भी जाऊं, वो कोई वहां बैठे हैं तो मैं भी कल गुफा में जाके बैठूं, नहीं होगा, नहीं होगा, never going to happen. You cannot copy. That is why you have to find your own way. Every single soul has to find their own way, which is best and appropriate to me according to my circumstances. That is the best for you. Not everybody has to run to the Himalayas. Not everybody has to come to jungles. It's not everybody's cup of tea. It looks very lucrative. See, lucrative. बड़ा शानदार दिखता है, शानदार दिखता है। तो सजग हुए, जागरूक हो के देखे तो देखेंगे कि वो शान की दौड़ है। वो वासना क्या है? शानदार, बड़ा शानदार लगता है, हिमालय बड़ा शानदार लगता है, तो मैं शान ढूंढ रहा हूँ वहाँ पे। वही हुआ बात, बोले ना किसी को लंगोट पहनने का भी ये होता है, उसी तरह से साधक को हो सकता है वहाँ जाके मैं हिमालय में तप करके आया, मैं इतने साल रहा, या मैं अभी हूँ, या जा रहा हूँ, या जाके आया हूँ। ये सब घमंड की बात हो सकती है। सजग नहीं है तो ये भी हो सकती है। तो ये एक वहम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तुम कहीं गए नहीं गए, किसको क्या फर्क पड़ा। एक महात्मा ने मुझे बोला, तुम साधक हो, तुम कल सिद्ध बने या महात्मा बने, किसको क्या फर्क पड़ेगा। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, उन्होंने सही बोला। मेरे अंदर ना सब ऐसे लाइट जल रहे थे। बोला सही बात है, किसको क्या पड़ा है। कोई महात्मा वहां से गिरा कॉन्शियसनेस से, प्रकृति को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बोला किसी की चेतना यहाँ से वहां हुई, कोई अवधूत बने, कुछ भी हुआ, प्रकृति में कुछ चेंज नहीं होता। ये पत्ता जैसा है ना, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, इसका रंग यही रहेगा, ये प्रकृति जैसी है, ये सब ऐसे ही रहेगा।
मैं यहाँ सांस ले रहा हूँ, आप वहाँ सांस ले रहे हो, खाना खा रहे हो, जो है जिंदगी ऐसी ही चलेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो काहे का घमंड बोल रहे थे, किस चीज की शान, किस चीज की बताना, किस चीज का जिक्र करना, कुछ नहीं है। एक परिवर्तन हो रहा है बस प्रकृति में। कितनी गहरी बात है, देखो उन्होंने जो कहा, बहुत सीखा है बहुत गहरी गहरी बात सीखा है वहां से, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ इस चीज को। तो ये सब आडंबर छोड़ के अपने को फोकस किस चीज पे करना है, चित्त शुद्धि पे, जागरूक होके जीना। स्वामी जी तो बार बार मुझे वही बता रहे थे, रमेश स्वामी जी, जागरूक जिंदगी नहीं है तो कुछ नहीं है बोल रहे थे, बाकी सब व्यर्थ है बोले, बाकी सब ढोंग है, सब नाटक है। दिस एक्चुअल वर्ड्स ही सेड। जीवन में जागरूकता नहीं तो कुछ नहीं है, बाकी सब ढोंग है, बाकी सब नाटक है। जागरूक नहीं और कुछ आपने किया या कुछ आपने बताया, कुछ भी ढोंग है, नौटंकी है। कुछ काम कर, क्योंकि जागरूकता में है ही नहीं, कुछ हो गया आपके हाथ से, आप खुद स्वयं जागरूक नहीं उस चीज का, अज्ञानतावश हो गया। जागरूक का ऑपोजिट अज्ञानता, अज्ञानता से हुआ है। तो इसे इस चीज को संभलना है साधक को, हर साधक को ये प्रयत्न करना है कि जागरूक रहे और सहज रहे हमेशा। जागरूकता होने से इंसान हमेशा सतर्क रहता है। और इन सब चीज जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये सब चिंतन है, डीप डीप चिंतन है, इस पर चिंतन करना आवश्यक होता है। चिंतन तभी कर सकते हैं जब हम जागरूक है और इस चीज को हम समझे और एक्सेप्ट करें। इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये बीतता जाएगा, ये निकलता जाएगा और हम आडंबरों में फंसे रहेंगे। तो ये सारे जो साधु संत महात्माएं हैं, ऑल दिस ग्रेट मिस्टिक्स, ये वो लोग हैं जो अभी हम बता रहे हैं ना, ये सब पार कर चुके हैं। और उनको किसी को फर्क बताना नहीं है, ना उनको स्वयं को कोई फर्क हो रहा है, क्योंकि वो किसी को भी कुछ साबित करने के लिए नहीं कर रहे ये सब चीज। समझे बात को? इसलिए जब भी ऐसे महात्मा देखता हूं तो दिल पिघल जाता है कि देयर इज वन पर्सन, यहाँ एक ऐसे शख्स जिसने प्राप्त कर लिया उस स्थिति को, और कैसे है भिखारी के जैसे, कोई फिक्र नहीं उसको, उसकी शान के बारे में कोई फिक्र नहीं, शान और शौकत का कोई फिक्र नहीं, उसका स्टेटस का कोई फिक्र नहीं, उसको ये फिक्र नहीं कि कितने फॉलोअर्स है कितने नहीं है, क्या उसका इमेज बना है, कितना इमेज ब्रांडिंग करना है, आइडेंटिटी बनाना है, कोई फिक्र नहीं। तो ऐसे जब अनब्रांडेड लोगों को देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है ये वो ब्रांड के चक्कर से छूट गए, ये उस माया की चक्कर से, पकड़ से छूट गए, निकल गए, खिसक गए सफलता से सलाम है ऐसे लोगों को, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आप सलाम भी ठोको नहीं ठोको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थिति में रहते हैं। वो स्थिति है सच्चिदानंद। मुझे तो वो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ या थोड़ा सा भी उनके साथ जुड़ जाता हूँ तो उसका छलक तो मिल जाता है, ये बात मैं मना नहीं कर सकता, छलक मिल जाती है, पता चलता है कि ये एक छोटी सी छलक ऐसी है तो वो किस स्थिति में क्या हो गया उनकी स्थिति, इच्छा होती है, आग्रह होता है कि वैसे बने। लेकिन आमतौर पे जब हम बात करते हैं सिद्ध अवधूत महात्माओं की, कोई उनको रोल मॉडल नहीं बनाता। ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, कोई इन लोगों को ध्यान रोल मॉडल, अभी एक झाड़ू लेके एक महात्मा पोछा कर रहे थे वहां पे, कितने लोगों को पसंद आएगा, उनका स्थिति क्यों पसंद आता है, क्योंकि एक डिवाइन है, उस स्थिति में पहुंच गए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम भी उस स्थिति में पहुंच सकते हो, थोड़ी देर के लिए हिल जाएगा आदमी। मैं ऐसे
नहीं, ऐसे नहीं बनना है मुझे। वो स्थिति चाहिए लेकिन ऐसे नहीं बनना है। फिर कैसे होगा? नहीं, वो स्थिति जो, वो महात्मा की जो अंदर की स्थिति है वो देखो कैसे है, मुक्त है, मुक्तो हम। जो गुरुदेव बार बार मेरे सुनाते थे, शिवोहम शिवोहम। शुद्धोहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम, नित्योहम। ये सारे वो स्थिति, और ये रमेश जी भी वही बता रहे थे वहाँ पे गंगा तट पे। तो मुझे मेरे गुरुदेव याद आ रहे थे, एग्जैक्टली सेम चीज़ें ही बोल रही थी, वो बोल रहे थे। तो वो स्थिति चाहिए, वो महात्मा देखे तो वो स्थिति चाहिए। हम, हमारे अंदर से सबकॉन्शियसली वही होता है, अवचेतन मन से वही लगता है, अंदर से वो एक तलब होती है कि ऐसी स्थिति पा लूँ, तो महात्मा का दर्शन कर लूँ, उनका आदर कर लूँ, कुछ तो कर लूँ, ताकि इस अवस्था। लेकिन बाह्य अवस्था अगर मैं बोलूँ कि बाह्य अवस्था ऐसे हो सकती है, कपड़े फटे हुए ऐसे घूम रहे हैं, तो आदमी सिकुड़ जाएगा। नहीं, ये नहीं, स्थिति चाहिए लेकिन वो ऐसा नहीं। अब हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि उस स्थिति में जब वो पहुंचते या कोई पहुंचता है, तब वो शर्म और ये सब जो डिफरेंसेस की, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, ये आइडेंटिटी, अपने आप को एक इमेज देना, बनाना, कुछ नहीं रहता। सब निकल जाता है, सब वासनाएं सब निकल जाती है। शुद्धो हम, शुद्ध जब हो जाते हैं तो उनको क्या फर्क। तो हम इस स्थिति से जब सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो स्थिति नहीं चाहिए अपने को, तो उस टाइम अगर आप जागरूक होंगे उस समय पे और सजग होके देखेंगे, तो बस मन ये चाह रहा है स्थिति वो हो लेकिन शानदार हो बाहर से। इसलिए जो वस्त्र शानदार है बाहर से, स्थिति वो है अंदर का, वो हमको ज्यादा पसंद आता है। ये मैं बोला, ध्यान से सुनो। कोई वेशभूषा अगर ठीक ठाक है, अच्छे है, अच्छे घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है बाहर से, और अगर वो स्थिति मिले, हाँ मुझे चाहिए, ऐसी स्थिति चाहिए। क्योंकि कंफर्ट भी होना चाहिए, स्टाइल भी होना चाहिए, ब्रांड भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, स्टेटस भी होना चाहिए, और वो स्थिति भी होना चाहिए। इट्स फॉल्स, फॉल्स टू अ सर्टन लेवल, यस। लेकिन मैं जो स्थिति की बात कर रहा हूँ, दूध स्थिति, जो महात्मा जो कंधराओं में बैठे, जिसको पता खबर ही नहीं खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, वो स्थिति इन सब से कोसों दूर है। ये भी स्थिति होती है कि बाह्य शान और अंतर शान भी हो। शान, वो एक महात्मा मुझे बोल रहे थे, पता है परेशान क्यों रहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा? क्योंकि वो शान से परे नहीं जा सकते। सुंदर बोला उन्होंने, शान से परे नहीं जा सकते, इसलिए परेशान। ये शान, शान यानी कि एक आइडेंटिटी जो हमारी, हम एक इमेज बना के रखा है, हर एक चीज में एक इमेज है अपना। कोई तो मुझे कहते थे, मेरा इमेज बिगाड़ रहे हो, मेरा इमेज बिगाड़ दिया तुमने, तुम क्या ऐसे बोल रहे हो, क्या ऐसे कर रहे हो, मेरा इमेज बिगड़ जाता है इसमें, मेरी इमेज खराब कर रहे हो क्या तुम? इमेज की अगर परवाह है हमें, कोसों दूर है हम। क्योंकि इमेज मेंटेन करने में रखे हैं, जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी इमेज में। इमेज क्या है, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग मेरे को इस तरीके से जानते हैं, अब तुम कुछ कह दोगे, कर दोगे, तो लोग मुझे उस तरह जानने लगेंगे, मेरा इमेज खराब हो जाएगा। ये ब्रांड है, इसको ही शान बोल रहे थे। तो शान से जब परे नहीं हो सकते, तो महात्मा ने मुझे बोला परेशान होते हैं।
ये सब थोड़ा जागरूक होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जकड़ के रखता है अपने को, अपनी चेतना को ऊपर उठने नहीं देता इस चीज़ को। मेरा स्वयं का भी अनुभव है और दूसरों से भी देख रहा हूँ मैं ऐसे ही कहीं से पढ़ भी लिख के किसी के सुन के नहीं बोल रहा हूँ, अपने स्वयं पूरा जितना भी मैं बात करता हूँ, सारे जो भी पूरा मेरा जो कन्विक्शन है, मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है या मैंने वो एक्सपीरियंस किसी एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करके उसको चखा है तभी बोलूँगा। हम किसी को नीचे नहीं गिराना चाहते हैं, हम ऑलवेज एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहते हैं अपने को, हम ये लेवल पे हैं। कोई कोई गुस्से में मुझे बोल जाते हैं, मैं क्या रास्ते पे पड़ा हुआ आदमी हूँ? मैं क्या यहाँ वहाँ पड़ा हुआ आदमी हूँ? तो कौन हो भाई आप? कौन से महल के हो? कौन से एस्ट्रल डायमेंशन के हो? स्वर्ग लोक, मेहर लोक, कौन से लोक से हो? रास्ते पे तो अवधूत भी पड़े हैं। देखो यहीं पे तिरुवണ്ണामलाई में अवधूत सारे रास्ते पे ही पड़े हैं। रास्ता कौन सा खराब है जहाँ बोलते हैं कि मैं रास्ते से उठा हूँ क्या, मैं रास्ते में गिरा हूँ क्या? ये हमारी बुद्धि जो हमको जकड़ के रखती है, ये सजग नहीं है हम इस चीज़ को। जब हम बोलते हैं हम सजग नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। तो फॉल्स आई बता रहा है ये जिसने एक आइडेंटिटी क्रिएट किया अपने बारे में, एक पर्सनालिटी, एक आइडेंटिटी बना के रखा है, और उसको मेंटेन करने में इतनी एनर्जी, ऊर्जा जाती है दिन रात। कितना हम ख्याल रखते हैं कि ये ना करे, वो ना करे, अरे कोई ऐसी भी थोड़ी सी भी ये ना हो, लोग क्या कहेंगे, कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा, कोई पहचान लेगा, कोई कुछ कर लेगा। ये एक मेंटेन करने को है, कितना ऊर्जा जाता है मेंटेन करने में। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी बातें, बहुत बहुत बड़ी बात है। सजग होना यानी कि ये हर चीज में, हर चीज में जागरूक होना। जब भी हम कुछ बोले, कहे, सुने, तो जागरूक होके डीप चिंतन में कि ये आ कहाँ से रहा है थॉट, और इसका डीप थॉट क्या है, कहाँ जाता है इसका सोर्स। यही साधना है, कंदराओं में बैठने की जरूरत नहीं है। यही जागरूकता से, क्योंकि क्या सिंपल फंडा है। कल मैं वो महात्मा जी के साथ था, गाड़ी में हम जा रहे थे एक महात्मा को मिलने, तब वो बता रहे थे इस चीज को। देखो जागरूक होने से क्या होता है, वो कुछ दूसरी बात बता रहे थे लेकिन बीच में एक सेंटेंस आएगा, जागरूक यानी कि मैं पकड़ लेता हूँ, मेरा वो सब्जेक्ट है अवेयरनेस। उन्होंने बोला जागरूक होने से क्या होता है, इमीडिएटली जो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो ड्रॉप हो जाता है, वो गिर जाता है, वो रुक जाता है, थम जाता है, वो डिजॉल्व हो जाता है, वो बाद में आगे नहीं बढ़ता। जैसे मैं अभी ये बता रहा हूँ, मैं रास्ते से उठाया क्या, मुझे रास्ते पे गिरा होंगे, उस टाइम पे अगर जागरूक होगी, सोचे रास्ता ये अभी जो मैंने बताया अवधूत, कौन सा स्टैंडर्ड है मेरा, क्या है, कौन से लोग से आया हूँ, क्या है इतना बड़ा, क्या है मेरा इमेज खराब करोगी, कौन सा इमेज है मेरा। उस टाइम पे जागरूक होके अगर सोचेंगे क्या है मेरे, कौन हूँ मैं, हूँ कौन मैं, असली में कौन हूँ मैं, उस टाइम पे जागरूक होकर सोचेंगे, तो ये जो चल रही है ना अंदर, ये रुक जाएगी, थम जाएगी, गिर जाएगी इमीडिएटली। नहीं जागरूक हुए तो हम बताते जाएंगे, अरे यही यही बातें बताते जाएंगे, दोहराते जाएंगे बार बार, और हमको लगेगा ये सही तो बदल रहा है, इसमें क्या खराब है, क्या गलत बोला मैंने। फिर आर्ग्यू भी कर सकते हैं, घंटों घंटों आर्ग्यूमेंट चल सकती है, दो दो तीन तीन घंटा, कि मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं सोचा, फिर उसको प्रूव करो, फिर बताते जाओ, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मेरा तो मतलब ये था, मैं तो ये सोच रहा था, या ये सोच रही थी, मैं, मेरा मतलब बोलने का मतलब ये था, प्रूव करते बैठो, चिंतन नहीं जाता, फिर उसमें डीप अवेयरनेस में नहीं जा रहा, जागरूक होकर उसको डिसॉल्व करने की कोशिश नहीं हो रही है। हालांकि ये सब छूट जाए जितना जल्दी, मैं बोला ना अच्छो अच्छो की नहीं छूटती है, बोला चेतना के स्तर ऊपर उठने के बाद भी उसमें भी एक अलग मेंटेनेंस होता है, ब्रांड होता है, स्टेटस होता है, एक नाम होता है, एक शान और शौकत होती है उसमें, जिससे स्ट्रांगली जुड़, और वो जो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, सच बोल रहा हूँ। मैंने, मेरे मन में हमेशा चलता था, ये कहाँ, ये आडंबर तो नहीं, कहीं फंस तो नहीं गए कोई, या शायद चलो निकल जाएगा, क्योंकि चेतना का स्तर अगर ऊपर है तो निकल भी जाएगा, इतना क्या है ये।
लेकिन एक महात्मा ने मुझे बात बताते मैंने ये डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो बता रहे थे, तो बहुत सारे जो मेरे मन में प्रश्न थे वो सब वहाँ सॉल्व हो गए। तो वो बता रहे थे ये जो चक्रव्यूह है, जो अध्यात्म में आके जो स्पिरिचुअल ईगो से होता है, बड़ा कठिन है बोल रहे थे उसमें से निकलना। ये ईगो से फिर भी निकल जाएंगे, स्पिरिचुअल ईगो से तो वो इतना ही बोल रहे थे, सावधान सावधान रहो उससे, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। खैर ये सब पॉपुलर थीम्स नहीं है, मैं बोला ना ये सब पॉपुलर थीम्स नहीं है, और ये सब पटेगी नहीं, सब जचेगी नहीं, ये सब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ये सब सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता, ऐसे सब बातें ठीक नहीं लगता अपने को। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ग्लैमर हो तो मजा है यार, ऐसा कुछ बात करो ना कि और इसको कैसे मेंटेन करके रखे और सस्टेन कैसे करके रखे इस चीज को, कैसे स्पिरिचुअली भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, एक लेवल पे पहुंच सकते हो। लेवल वेल के चक्कर में पड़ोगे ना, फिर उसको मेंटेन करते करते जिंदगी गुजर जाएगी, और वो लेवल से अगर गिर गया कोई संभल नहीं पाएगा, क्योंकि वो शानो शौकत में जाके अटके हैं, बड़ा मुश्किल होता है बाद में वहां से निकलना, क्योंकि वो आइडेंटिटी ही सब कुछ बन गया। देखो अध्यात्म में हम आते हैं आइडेंटिटी घुलाने को, डिजॉल्व करने को, सारे तरह का पर्सनालिटी और यहाँ हम बैठे हैं अलग अलग नए नए आइडेंटिटीज और पर्सनालिटी बनाते हुए, और हमको उसका आभास तक नहीं है कि कितने हमने एक पर्सनालिटी बना रखी है। पकड़ है ये सब, और ये मैं अभी खुले बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं वहां से जाना। कहाँ से? हिमालय से। बहुत सारे हिमालयन बुक्स पढ़े हैं मैंने। हिमालय है वैसे भी है, बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है, इनडिस्क्राइबेबल है, लेकिन गलत चेतना गलत नजरिए से अगर आप जाओगे तो उसकी स्थूलता ही दिखेगी, उसका स्थूल वहां पे भी एक ग्लैमर ही दिखेगा। हिमालय में भी ग्लैमर देखा मैंने, सही बोल रहा हूँ, हिमालय में भी ग्लैमर है, पहुंच गया ना माया वहां पे भी। तो इंटेंशन है, जिस इंटेंशन, ये अगर अभी जो मैं पूरा ये वीडियो में बात किया, ये अगर क्लियर होके आप हिमालय में जाओ तो आपका मकसद पूरा होगा, जो असली मकसद है हिमालय का वो पूरा होगा। लेकिन ये हमारा फंडामेंटल्स अगर ठीक नहीं है, गड़बड़ तो यहाँ तो हो रहा था, ये गड़बड़ से छुटकारा पाने के लिए हम हिमालय चले गए और वहां पे नए नए गड़बड़ कर दिए। ये हो जाएगा हालत। बहुत संभलना है, बहुत बहुत संभलना है। वहां पे मैं भी चूका बहुत बार, क्योंकि यहाँ का वर्ल्डली स्पिरिचुअलिटी लेके जा रहा हूँ ना वहाँ पे, और वहां को जैसे महात्मा मिले जो धज्जियां उड़ा दे, ये सब सही में बोल रहा हूँ, उनको कुछ नहीं पड़ा है, सीधा धज्जियां उड़ा देंगे। तो सीखने को मिलता है कि हिमालय इज नॉट दैट। कुछ लोग हिमालय में जाते हैं, तलाश में जाते हैं कि कोई कौन किस कंदराव में, कौन से गुफा में कौन बैठे हैं और कहाँ से थोड़ा लाभ मिल जाए, प्रॉफिट एंड लॉस है वो, कुछ मिल जाए प्रॉफिटेबल, ब्लेसिंग ही सही, वो सही। मैं बोल रहा हूँ ना, नजरिया है। देखो मैं भी गया वहाँ पे, मैं भी गया, लेकिन मैं बोला ना मुझे कोई आइडिया नहीं कि वहाँ ये सब लोग भी मिलेंगे। कोई तो लेके गया, मैं बोला चलो एक कोई तो प्रोजेक्ट है, कहीं जा रहे हैं चलो, आधा मन से गया था। मेरे दोस्तों को पूछो, मेरा जाते दिन भी मेरा कोई ये नहीं था, कोई ऐसा एंथुजियाज्म नहीं था। मैं बोल रहा था 10 दिन वेस्ट हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ जब गया और चीज़ें खुलने लगी, और मेरा जो इंटरेस्ट का है ये सब चीज़ें, महात्मा वो सब चीज़ें, और ऐसे ऐसे जगहों में जाके ऑटोमेटिकली ले गया कुछ तो हो गया। तब वहाँ उस अनुभव को मैंने बस जिया, वहाँ कुछ पाने नहीं गया था, और सत्य बोल रहा हूँ,
वहाँ लोग लगे हुए थे, पैर छुओ, वो करो, ये करो, वो करो। पैर तो छूते हैं, वो एक रिस्पेक्ट है, आदर है। वहाँ तो मैंने सीखा कि कोई भी बुजुर्ग भी हो, कोई भी हो, पैर छूते हैं। ऐसे कि अगर आप चल रहे हो और 50 लोग आपके सामने आए तो गारंटी 40 लोगों के आप पैर तो छू के ही रहोगे, सब छुएंगे उधर। ऐसे चलता है, वो एक कल्चर है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो चल रहा था। लेकिन एक जो होती है आग्रह से, मुझे ये कुछ देखे, मेरे कुछ कर्म डिसॉल्व हो जाए, मुझे कुछ करे, मुझे कुछ प्राप्त हो इनसे, ये इंटेंशन गड़बड़ है। क्योंकि इट्स अ सेल्फिश डिजायर, कुछ प्राप्त करने के लिए। ये प्योर इंटेंशन नहीं है। प्योर हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें छुपा हुआ है, कुछ तो स्वार्थ छुपा हुआ है। इतना सूक्ष्म है, समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन डियर वंस, वो जो सामने बैठे हैं ना, उसको ये दिखता है बहुत क्लियर। जो हमको नहीं दिखता उसको दिखता है, और वो उसके ऊपर से डिपेंड करता है कि उसका क्या भाव जागृत हो वहां से। तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे हम मस्का मार सकते हैं किसी को, किसी सिफारिश लगा सकते हैं, पहुंच लगा सकते हैं, कुछ तो लगा सकते हैं, कुछ लाइन तोड़ सकते हैं, दादागिरी कर सकते हैं, पावर से जा सकते हैं, बहुत कुछ चेष्टा कर सकते हैं पाने की। वहाँ नहीं चलता, वहाँ कितना भी आडंबर कर लो नहीं चलेगा। रबी, I would like to request if you could prepare a self-help guide later when you come back for those who would like to wander and do tapas in the Himalayas. These are the guides only, the ones that I am telling. I am talking about the same only here. If your intention is very clear, see, intention also very people think it's pure only. Going to the Himalayas is a pure intention. क्या खराब है इसमें? महात्मा को मिलने जा रहे, क्या खराब है इसमें? साधना करने जा रहे, क्या खराब है इसमें? नहीं, सूक्ष्मता से देखनी होगी क्या खराब है या नहीं है। क्यों करना चाह रहे हो वो पूछो पहले। क्या असली रीजन खोजो। क्यों जाने, क्या इस शान का बढ़ावा तो करने नहीं जा रहे हो, और थोड़ा या शान को मेंटेन करने, या जो भी मिला है उसको मेंटेन करने जा रहे हो, या जो शान से परे जाने की नाकाबिलियत की वजह से जो परेशान हो, उस परेशानी को खत्म करने की आड़ में जा रहे हो। वो परेशानी खत्म नहीं होगी जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम शान के परे जाना पड़ेगा अपने को। ये तब तक नहीं सुलझेगा। ये सब किसके पास है? अपने ही पास है। तो अपने पास है तो हम बाहर से किसी के पास से क्यों अपेक्षा करें? तो कोई महात्मा है तो वो भी देखता है ना, तुम कितना जागरूक हो उसके बारे में, तुम कितना स्वयं का ये कर रहे हो, कितना प्रयत्न कर रहे हो उस साफ सफाई में। तुम अगर नहीं कर रहे हो, सबको ढक के रखे हैं, और जाके बोले कि आप कर दो सब कुछ, कोई कुछ नहीं करेगा। कर्म में हस्तक्षेत्र हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट इज दैट वर्ड, इन्वॉल्वमेंट, इंट्रूजन। So there is no, Devan, there is no such thing called guide, because all the world has written lots of guides and books on Himalayan treks. It sells. That is what one Mahatma was telling me there. कि बिकता है, अध्यात्म बिकता है, अध्यात्म में भी बिकता है। आप कुछ भी लिख दो, हिमालय के बारे में लिख दो, योगियों के वहाँ के बारे में लिख दो, देखो वो देख के ही लोग जाते हैं वहाँ पे। मैंने सुना था कोई गए थे महाअवतार बाबा जी को ढूंढने निकले, और कहीं तो कहीं में बुक वगैरह कुछ तो पढ़ के गए थे, वो महाअवतार बाबा जी मिलेंगे वहाँ। तो गए, बहुत ढूंढे वूंढे, कुछ नहीं हुआ, थके हारे बीमार भी हुए, वापस आए। सुना था मैंने। उद्देश्य ही गलत था। महाअवतार बाबा जी को एक ग्लैमरस बीन नहीं है।
उसके लिए इतनी चित्त शुद्धि होनी चाहिए, इतना भोला रहना चाहिए साधक को, इतना इतना भावुक, इतना भोला, इतना विनम्र, इतना सरल, इतना सीधा, इतना खाली होना पड़ता है, तब जाके ऐसे पुरुष दिव्य दर्शन हो सकते हैं। अगर आपका उनका वो इंटेंशन है कि वो दर्शन दे, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो है नहीं है कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो है, सूक्ष्म में भी है तो है, स्थूल में भी है तो भी है, it's a good thing, but that should not be the purpose. Why do you want that भाव क्यों ऐसे आए कि मैं महाअवतार बाबा को मिलूं, कि वो मुझे दर्शन दे, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि उन्होंने दर्शन दिया। यही तो हुआ है। इतिहास को देखो, यही हुआ है। मुझे नहीं लगता, मेरे अंदर से मुझे नहीं लगता कि ये उच्च की ये जो अपेक्षा है, इट्स नॉट अ फाइन डिजायर, इट इज नॉट द हाईएस्ट डिजायर. So if they are vibration, the ascended masters, if they are on that level, do you think they will present you because एक तुमको एक ऐसी इच्छा हुई कहीं तो बैठ के एक बुक पढ़ लिया, कहीं इच्छा हुई चलो हम भी मिलते हैं महाअवतार बाबा को, और खोज रहे उसको यहाँ वहाँ वहाँ, बीमार नहीं होके वापस आओगे तो क्या हो जाएगा फिर, कैसे मिलेंगे? ऐसे तो पूरी दुनिया लगी है शंबाला ढूंढने में, पूरी चाइनीज गवर्नमेंट लगी हुई है, आज तक नहीं मिला उनको, वही है लेकिन नहीं मिलता उनको, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की बैटर है माय भाई। फ्रीक्वेंसी में हो तो आप वहाँ रेल्स में एंटर करोगे, फ्रीक्वेंसी में हो तो ऐसे महात्मा मिलेंगे या ऐसे कोई प्रकट होगा, जो भी है, विदाउट योर इंटेंशन, विदाउट योर इंटेंशन ऑल्सो इट कैन हैपन। बट कोई इंटेंशन लेके जाएगा, मैं उनको दर्शन लेके ही रहूँगा, उनको प्राप्त करके ही रहूँगा, उनको आना ही पड़ेगा, वो जिद अलग। जो कुछ लोगों ने किया, कुछ महात्माओं ने, इतिहास में हमने पढ़ा है कि उन्होंने जिद किया और शिव प्रकट हुए, माँ प्रकट हुई साक्षात। उनकी जिद एक बालक वाली जिद है, अहम वाली जिद नहीं है, फर्क है। हाँ भैया, आप एकदम सही बोल रहे हो, बोल तो सही रहा हूँ, पढ़ता बहुत कम को है, क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा है। सत्य यानी कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। तो वहाँ जब मैं गया, ये सब देखा और कई सारे अवगुण मेरे अंदर भी मैंने देखा, अरे ये तो मिसकंसेप्शन था मेरे को, मैं तो ऐसे सोचता था। तो मैं क्योंकि जागरूक रहता हूँ, मैं सीखता हूँ, वही मैं दुनिया को बताने की कोशिश करता हूँ कि आप भी रहो तो आप भी सीख जाओगे। बहुत सारी आपकी गलती होंगी, मेरी बहुत सारी गलतियाँ थी जो दिख रहे थे वहाँ पे क्लैरिटी में। तो वो जिद जो बालक करता है वो अलग अलग किस्म का, वो एक हट अलग ही है, और वहाँ तो प्रकट होना ही होना है, गारंटेड। क्योंकि एक महात्मा ने मुझे बताया 3 ख सीक्रेट्स टू रिसीविंग डिविनिटी। ख ख ख खाली होना जरूरी है, खुला होना जरूरी है, और खिला होना जरूरी है। और ये 3 जब वो बता रहे थे, मुझे एक ही चीज याद आ रहा था, ये तो बच्चों में ही होता है, खाली रहते हैं, खुले रहते हैं और खिला रहते हैं। तो इस अवस्था में अगर कोई बुलाए तो मुझे नहीं लगता कोई देरी होगी या कोई ज़्यादा परेशानी होगी। हाँ, मैंने तो उस भाव से कभी नहीं गया हूँ बुलाने, मेरी इच्छा नहीं होती है ऐसा कुछ करने की, लेकिन मुझे बहुत उम्दा लगता है। या कोई आए थे यहाँ पे तो उनको जवाब दे रहा था, यहाँ क्या कर रहा हूँ। यहाँ ये रिजर्व फॉरेस्ट का जगह है, तो प्लांटेशन चलता है, तो आके पूछ रहे थे, तो मैं बता रहा था व्हाट्सएप कॉल पे, लाइव कॉल पे हूँ, बताया मैंने उनको, लाइव कॉल ही तो है। तो हाँ, तो मैं
यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो महात्मा हैं, ये जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जितने भी ग्रेट डिवाइन एनलाइटन बीइंग्स हैं, ये सारे जो भी हैं, ये पूजनीय लायक हैं. दे आर ऑल वर्थ वर्शिपिंग बिकॉज ऑफ देयर स्टेचर. वो वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं. ये जितना भी मैंने एग्जाम्पल्स बताया आपको, ये सारे उसके परे जा चुके हैं लोग. कोई लेना देना नहीं है. ये देखो, सेवा वहाँ चल रही है, सारे केव्स में कुछ लोगों को ये पहुँचाओ वो पहुँचाओ, ये सब वो लोग हैं जो एक्चुअली इन प्रोसेस हैं. योगी है, तपस्वी छोटे मोटे नहीं है. कोई 10-10 साल 15 साल से संकल्प लेके बैठे हैं वो सब. ठीक है, वो तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं. उनको ज़रूरतें आवश्यकताएं हैं, वो सब ठीक है. लेकिन मेरी नज़र उन पे थी जिनको इस सेवा की भी ज़रूरत नहीं. मेरी नज़र बस उन पे रही, क्योंकि वो उस स्तर पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो उन कंदराओं में बैठे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है कुछ चीज़ का. कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है. और ज़रूरत अगर है तो मिल जाता है उनको. किसी को स्थूल ज़रूरत है तो वो भी पहुंच जाता है हिमालय में. वही मैंने देखा. वेरी सरप्राइजिंग. कोई अगर गुफा में भी बैठा है. एक महात्मा हमारे साथ बैठे थे, हमारे साथ गाड़ी में आ रहे थे. उनको लिफ्ट चाहिए था. हम लोगों ने उनको पिक किया रास्ते से, तो बगल में ही बैठे थे अपने और बता रहे थे. तो मैं कुछ कुछ पूछ रहा था उनको कि महाराज, अगर कोई ऐसे गुफा में बैठा है और उसको बहुत इमरजेंसी कुछ नीड लगे तो कैसे. तो उन्होंने बोला ऐसे कुछ नहीं होता उनका. उनको नीड्स ही नहीं है. जब नीड्स नहीं है तो सारे नीड्स फुलफिल हो जाते, बोले वो. उदाहरण दिया उन्होंने. एक महात्मा थे, वो चाय बना लिए अपने लिए और किसी को भी पिला रहे थे, दूसरे महात्मा को, गुफा में अपनी. दूध नहीं था. दूध नहीं, सॉरी, चीनी नहीं था. चीनी बिल्कुल नहीं था. तो उन्होंने बोला ठीक है, चीनी नहीं है, ऐसे ही बना लेते हैं. और वो चाय बना ले. देखो, वो ये नहीं संकल्प कर रहे कि मुझे चीनी चाहिए. अब कैसे, या प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं. बियॉन्ड डिजायर्स, एनी डिजायर्स नहीं है संतुष्ट, क्योंकि वो गुफा में बैठे हैं, तृप्ति के लिए बैठे हैं वहां पे. थोड़ी देर बाद एक कोई तो भगत ऊपर चढ़ आया, जो आते रहते हैं उधर. कोई कोई लोग पहुंचते गांव से, और उसके हाथ में था चीनी और कुछ नहीं. पहुंच गया, उनको जो जरूरत है वो पहुंच गया. एक महात्मा तो बोल रहे थे कि उनका कुछ फट गया, सुई धागा नहीं मिल रहा था. सुई धागा कहाँ से मिले. वो सोचे अरे ये तो फट गया, अब क्या करूं. उस वक्त एक बंदा आया सुई धागा लेके. आप बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं. वो आदमी ने बोला होगा, महाराज मेरे मन में आया कि ऐसे सुई धागा ले, कुछ भी, या कोई प्रकट हुआ बोल सकते हैं, या कोई किस रूप में, कुछ भी बोलो. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी हो सकता है. लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो महात्मा का स्टेट, उसकी स्थिति, वो उस स्थिति में है कि वो ना चाहते हुए भी सब मिल जाता है. उनको सलाम. मैं उन लोगों पर नज़र रख के बैठा था कि कौन है जिसको कोई ज़रूरत नहीं है. हिमालय में वो भी बहुत बहुत कम है. क्योंकि कम इसलिए है, या ना के बराबर इसलिए है, क्योंकि वो चाहे नहीं तो वो क्यों आएंगे आपके सामने, या आप क्यों जाओगे उनके सामने. उनको कुछ लेना देना नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, उम्मीद ही नहीं है उनको तुमसे कुछ, या दुनिया से कुछ. इस स्थिति में जो रहते हैं, मिलना बहुत मुश्किल है. और मैं बोल रहा हूँ ऐसे लोग कंदराव में उतने ही नहीं, हिमालय में उतने ही नहीं, ऐसे दुनिया में भी घूमते हैं. मैंने देखा है. तिरुवन्नामलाई एक स्थान है ऐसा, पढ़नी स्थान है,
चिदम्बरम स्थान है, सतुरगिरी स्थान है, ऐसे स्थान है जहाँ घूमते रहते, पहचानना बहुत मुश्किल, फटे हुए कपड़े में, गंदे कपड़ों में घूमते रहते हैं। अगर हम और आप स्टैंडर्ड देखते रहेंगे, चूक जाएंगे, निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए विवेक जागृत होना बहुत आवश्यक है। विवेक को जागृत के लिए आपका जागरूक होना बड़ा आवश्यक है, सजग रहना बड़ा आवश्यक है। जो मैं सिखा रहा हूँ, शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस, यू हैव टू बी अवेयर। ये आपकी 5 इंद्रियां नहीं दिखा सकती, जो आपको 5 इंद्रियां नहीं दिखा सकती, वो आपका तीसरी आंख दिखा सकती है। तीसरी आंख किसका टूल है? जागरूकता की। जागरूक हो तो आपका तीसरी आंख जागरूक होता है, विवेक जागरूक होता है। तो परखने की एक आंख मिलेगी, वो ये 2 स्थूल आंखें नहीं, दूसरी आंख। परख सकते हो, 100 में भी, भीड़ में भी पहचान सकते हो। दृष्टि वैसे बन जाएगा अगर जागरूक होते रहें हर एक चीज में। जागरूक होना यानी कुछ नहीं है, यही है जागरूक होने की। अंतर्दृष्टि से देखो हर चीज को, स्वयं को देखो, दूसरे दुनिया को देखो अंतर्दृष्टि से। अंतर्दृष्टि क्या है? तीसरी आंख। मैं ज्यादा इस तीसरी अंक की बात नहीं करता, क्योंकि वो बड़ा कमर्शियल वाला चीज है। थर्ड आई बोलो, बहुत बहुत फिनोमेना, बहुत क्या क्या चलता है उसके नाम पे, इसलिए मैं जिक्र ही नहीं करता इस चीज का। लेकिन ये सब उसी से जुड़ा हुआ चीजें हैं, चीजें जागृत होती है इसमें। ज्यादा बखान करो तो नया बखेड़े में पड़ जाओगे। खैर, मैं वीडियो उसी के लिए बना रहा था कि क्यों हम इन महात्मा, इन सिद्ध पुरुषों को इतना हम सराहते हैं, क्यों ये पूजनीय है और कैसे पूजनीय है। ये वीडियो अगर आपने लेट देखा है तो पूरा देखो, आपको समझ आएगा कि वहां भी माया है। हम तो देख आते हैं सबको। अगर अंतर्दृष्टि जागृत नहीं है तो आप सबके पैर छुआओगे, लेकिन जिसकी छुनी थी उसको मिस कर जाओगे। यही है पकड़। जिसकी पैर छुनी थी वो मिस हो जाओगे, क्योंकि वो इन जैसा नहीं दिखता, वो अलग है। वही उसकी माया है, वही उसकी लीला है। कुछ सहज भाव से अपने आप ऐसे बन जाते हैं, कुछ जानबूझ के अपने आप को छुपाए हुए रखने के लिए ऐसे करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अंतर्दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, मैं वो सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको जागृत नहीं हुई और आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं अगर एक टिप्स दूंगा कि ये 5 टिप्स है या 10 टिप्स है, 10 टिप्स, ये बताता है कि ये एक महात्मा है, उस लेवल के हैं, वहाँ पे भी चूक हो सकती है। क्योंकि देखेंगे फिर भी हम ये दो दृष्टि से, इन पंच इंद्रियों से देखने की कोशिश करेंगे, अंतर्दृष्टि से नहीं जाएगी, क्योंकि अंतर्दृष्टि तैयार नहीं है अभी तक देखने के लिए, जागरूक नहीं है, तो वो भी काम नहीं करेगा बताने से भी। ये स्वयं अंदर से होना जरूरी है, आवश्यक है। तो अंदर से कैसे हो उसका टिप्स मैं आपको बताते रहता हूँ। बहुत कुछ चीज़ें ऐसे जो है जागरूकता से रिलेटेड ही है, सजग होने से ही है। जिंदगी सजग होके जिएंगे, जागरूक होके जिएंगे, स्वयं की भी चित्त शुद्धि हो जाएगी और अपना नजरिया भी बदलना शुरू हो जाएगा। तो अंत में मैंने हिमालय से यही सीखा, इन महात्माओं से भी यही सीखा कि सब आडंबर है, सब एक ही चीज के लिए होता है, चित्त शुद्धि के लिए। चित्त शुद्ध हो गया, आपका काम हो गया। एक महात्मा ने बताया, चित्त शुद्धि तक साधना, तपस, तप, जो भी बोलो, ये सब ले जाता है इंसान को। चित्त शुद्धि हो गया तो ये सब सारे आडंबर
अपने आप छूट जाते हैं। छोड़ने वाला कोई होता नहीं, कोई करता नहीं होता कि मैं छोड़ दूँ इन चीज़ों को। अपने आप होना लगता है शुरू, अपने आप सहज रूप से होने लगता है। लेकिन वो चित्त शुद्धि एक स्तर पर होने के बाद, और आगे की भी चित्त शुद्धि चलते रहती है, ज़्यादा ज़्यादा सूक्ष्म होते जाता है साधक की जिंदगी। जागरूकता बड़ी सरल, बड़ी तेज होना शुरू हो जाता है। वो जीता है सिर्फ जागरूक होके, अवेयर होके। वो सिर्फ होता है, वो बनता नहीं, वो करता नहीं, सिर्फ होता है। इज इन द बीइंग। तो जो भी लेट ज्वाइन किया, अगर आप पूरा वीडियो देख सकते हो, आपको समझ आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और क्यों ये सारे महात्मा पूजनीय है। मैं क्यों थोड़ा थोड़ा करके फ़ोटोज़ यहाँ वहाँ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। फ़ोटोज़ में कुछ नहीं रखा है। फ़ोटोज़ तो एक माध्यम है आप उनकी चेतना के साथ जुड़ने की, और कुछ लोग कर जाते हैं इस चीज़ को। जो जानते हैं मैं सब्जेक्ट पे जितना, जो भी सीरियस काम कर रहे हैं, जो भी मैं शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस, या जो भी मेरे लाइव सुनते हैं और उस पर प्रयास कर रहे हैं, उनको वो जान जाएंगे। वहाँ पे मैं नहीं डालता पोस्ट में ऐसे करो, इनको ऐसे देखो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ फ़ोटोज़ डाल देता हूँ कभी कभी। बाकी तुम्हारी चेतना करेगी, तुम्हारी जागरूकता करेगी, अगर जागरूक हो तो ये सब के लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए। ये लकड़ी लेके आया क्योंकि बहुत सारे बंदर हैं यहाँ आज। बंदर लंगूर बहुत घूम रहे हैं आज। तो ये बैग है हाथ में, तो वो टूट पड़ते कभी कभी। उनको लगता है कि इसके अंदर कुछ भोजन है उनको खाने के लिए। तो मेरा समय हो गया अब मेरा जलपान का समय हो रहा है 2 बजे। मैं और ऊषा ही जा रहा हूँ, वहाँ बैठ के थोड़े कुछ लाइट में खा लूँगा, फिर उसके बाद वापस रमण आश्रम। जब मैं देख रहा हूँ कहाँ से आया मैं। ये थोड़े थोड़े मैं मार्किंग करके आता हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता चल जाता है कि मैं यहाँ हूँ। यस, यस। तो ये है तिरुवन्नामलाई, अरुणाचल पर्वत। देखो कितनी असीम शांति है। शिव का नाम पहली बार सुन रहा हूँ यहाँ पे। इतने दिनों में 10 दिन से मैंने शिव का नाम नहीं सुना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ सब नमः शिवाय बोलते हैं तिरुवन्नामलाई में। हिमालय में कोई नमः शिवाय नहीं बोलते हैं। नमो नारायण, हरि ओम, जय श्री कृष्ण, यही चलता है। क्योंकि वो नारायण तत्व ज़्यादा है वहाँ पे। मतलब तत्व ही वो है, कृष्ण का जन्मभूमि है, राम जी का जन्मभूमि है, तो नारायण अधिकतर बोलते हैं वहाँ पे। और जैसे तिरुवन्नामलाई आ गया, नमः शिवाय चल रहा है। यहाँ शिव तत्व, नारायण तत्व, और माँ गंगा शक्ति तत्व। कुछ भी नाम दो इन सबको, मैं इसमें नहीं पड़ता। जहाँ जिस स्थान में हूँ वहाँ उनको जो अच्छा लगता है, अनुकूल लगता है, वो नाम लेता हूँ। यहाँ कोई नमः शिवाय बोले तो नमः शिवाय बोलता हूँ, वहाँ हरिओम बोले तो हरिओम बोलता हूँ, जय श्री कृष्ण बोले जय श्री कृष्ण बोलता हूँ, वाहे गुरु बोले तो वाहे गुरु बोलता हूँ। क्योंकि तत्व अगर जान गए आप, बाकी सब आडम्बर है। तो विद दिस लॉट्स ऑफ डिवाइन लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत प्रेम के साथ आप सबको। मे बी ऑल इवॉल्व, स्टे ब्लेस्ड। जब भी मौका मिलेगा तो मैं दूसरा एक लाइव करने की कोशिश करूँगा। अच्छा मैं यहाँ हूँ, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये अच्छा है,
लंगूर सब चले गए, बहुत सारे लंगूर थे यहाँ। मेरे तीनों हाथ भरे हुए हैं। ये देखो स्थिति, एक हाथ में लकड़ी है, ये नए बुक्स है रमणाश्रम से जो लिया है ऐसे हाथ के नीचे, और एक हाथ में मोबाइल है। सर्कस करते हुए निकला हूँ यहाँ से। बहुत बंदर होते हैं, आज नहीं है शायद, वो सब उस तरफ चले गए। कभी कभी मैं सुबह जब आता हूँ, बहुत सुबह जब अंधेरा होता है, कभी 5 बजे ऐसे, तो इस पत्थर पे आके बैठता हूँ। यहाँ पूरा अंधेरा होता है, यहाँ कोई नहीं होता। अगर आप लोग मेरे लाइव देखते हैं तिरुवन्नमलई का, तो मैं एक बार यहाँ सुबह 5 बजे आके, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वो यहाँ पे गाया था, अभी भी याद है मुझे। चलो, यहाँ एक पत्र मिल गया मुझे अभी, इसको पकड़ के मैं आश्रम की तरफ जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत दिव्य प्रेम के साथ आप सबको मेरा नमन। स्टे ब्लेस्ड।